ठीक है जी, स्टार्ट करता हूँ तो फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बार मुझे एक चांस दिया भगवद गीता 2.7 पे कुछ बोलने का। मैं ट्राई करूंगा, जो कुछ भी बोलूंगा, जो भी लेक्चर्स वगैरह है और जो भी प्रभुपाद ने लिखा है वहां से देख के बोलने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट प्रभु जी। आई होप कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ ओके प्रभु जी, तो शुरू करते हैं। चल नहीं रहा है, एक मिनट प्रभु जी। हाँ चल गया। इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है प्रभु जी, मैं दिख रहा हूँ ना? आई मीन वीडियो आ रहा है ना, ऑडियो आ रहा है? ठीक प्रभु जी। तो 2.7 भगवद गीता कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत यत्श्रेय सन्निश्चितं गृहीतन्मे शिष्यस्तेहं साधिमान् त्वं प्रपन्नम्। Translation: Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct. Purport: by nature's own way, the complete system of material activity is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life, which happened due to our desire. They are like a forest fire, which happened without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the worldly situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. This is the purport of the verse. आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, who is the man in material perplexities? It is he who does not understand the problems of life. In the Brihadaranyaka Upanishad, the perplexed man is described as follows: Yoga etad aksharam gargi aviditvasma lokat praiti sakripana. He is a miserly man who does not solve the problems of life as a human, and who thus quits this world like cats and dogs. Without understanding the science of self-realization, this human form of life is a most valuable asset for the living entity. Who can utilize it for solving the problems of life? Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is a Brahmana, or he who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. Ye etad aksharam gargi viditasmai lokat praiti sa Brahman. The Kripanas, as miserly people, waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. In the material conception of life, one is often attached to family life, namely to wife, children, and other members, on the basis of skin disease. The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. Such family attachment can be found even in the lower animals and take their children also. आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the cause of his perplexities. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on account of miserly weakness, he could not discharge the duties.
He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks between the master. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and disciple are serious. And now Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. How Arjuna understands Bhagavad Gita is stated in the Gita itself. And yet, Buddhist mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without. And one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand. तो काफी बड़ा पर्पट है. सो एक समरी में जो दो चीज प्रभुपाद मेन चीज बता रहे पर्पट में वो ये है कि बहुत सारी परप्लेक्सिटीज हैं और उन परप्लेक्सिटीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक गुरु के पास जाके सरेंडर करना चाहिए. आगे देखते हैं. क्वेश्चन ये है परप्लेक्सिटी क्या है, व्हाट इज परप्लेक्सिटी. सो प्रभुपाद ने अपने पर्पट में लिखा है परप्लेक्सिटी आर लाइक फॉरेस्ट फायर्स which start without our desire. मतलब हमारे बिना चाहे हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है. फॉर एग्जांपल किसी को बॉडीली डिजीजेस आती है, किसी का बॉडी खराब हो जाता है, किसी का माइंड में बार बार एंग्जाइटी आती है, थॉट्स आते हैं अजीबोगरीब, ओसीडी उस टाइप का थॉट्स कहते हैं. मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी रिलेटेड होता है, माइंड रिलेटेड होता है, वो हमारे बिना चाहे होता है. ये एक प्रकार की परप्लेक्सिटी है. दूसरे टाइप, कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा एनिमल या फिर कोई दूसरा लिविंग एंटिटी हमें परेशान कर रहा है, वो भी एक प्रकार का परप्लेक्सिटी है और वो भी हमारे बिना चाहे होता है. हम नहीं चाहते कोई हमें परेशान करे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है. थर्ड टाइप का परप्लेक्सिटी है जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, वो हमारे ऊपर होते हैं, तो वो भी एक परप्लेक्सिटी है. सो जो प्रॉब्लम्स है और जो प्रॉब्लम्स के हेतु तो हमारे अंदर जो कंफ्यूजन होता है, जो डिस्टर्बमेंट होता है, उसे परप्लेक्सिटी कहते हैं. सो मेन बात है परप्लेक्सिटी क्यों आती है भाई, व्हाई डू परप्लेक्सिटीज अराइज. आंसर इज क्योंकि हमारे पास भी कार्पण्य दोष है. जैसे कि अर्जुन भगवदगीता में कह रहे हैं कार्पण्य दोष आपात स्वभाव. अच्छा, तो ये कार्पण्य दोष बाद होता क्या है, व्हाट इज दिस कार्पण्य दोष, और हमें भी ये है पक्का. आइए आगे देखते हैं. व्हाट इज कार्पण्य दोष, माइजरली डिफेक्ट. कार्पण्य दोष होता है नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन. जब हम लोग अपने पोजीशन के हिसाब से एक्ट नहीं करते हैं तो हमें सारे के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके, सो ये पोजीशन क्या होता है, व्हाट इज पोजीशन. सो पोजीशन दो चीज से बना होता है, एक होता है स्वभाव और एक होता है उस स्वभाव के अकॉर्डिंग स्वधर्म. सो इन दोनों चीजों को पहले जानना होगा. स्वभाव क्या है, नेचुरल प्रोपेंसिटी. हमारे अंदर जो भी नेचर है, फॉर एग्जांपल किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है, किसी को खट्टा खाना अच्छा लगता है, कोई बड़ा गुस्सैल है, कोई बहुत शांत स्वभाव का है, कोई बहुत फ्रेंडली है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है. सो ये होता है नेचुरल प्रोपेंसिटी. ये सिर्फ इंसानों में नहीं, ये सिर्फ एनिमल्स में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ते का प्रोपेंसिटी होता है किसी के दूसरे को चाटना. अगर आप देखे होंगे तो कुत्ता जूता चुरा के ले जाता है कहीं कहीं पे. हमारे ट्यूशन में, छोड़िए वो सब बात छोड़िए, मतलब बेसिकली यही होता है नेचुरल प्रोपेंसिटी. किसी का एक नेचुरल इंक्लिनेशन किसी चीज की तरफ, और जो नेचुरल प्रोपेंसिटी होता है उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है. सिर्फ आउटवर्डली फोर्स करके हम अपने नेचुरल प्रोपेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता होता है, ठीक है, एक कुत्ते का नेचुरल प्रोपेंसिटी हम उसे राजा बना के चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर कुत्ते को हम राजा भी बना दे तो भी वो वही चीजें खाएगा जो कुत्ता बन के खाता था. ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल प्रोपेंसिटी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज स्वभाव इन एनिमल लाइफ. बट एक चीज है, एनिमल लाइफ में किसी का स्वभाव चेंज करना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ में हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं. तो ये हमारे लिए बहुत ही लकी बात है कि हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं. आइए, सो मेन बात यहाँ पे आकर अटकती है, व्हाट इज आवर स्वभाव. आवर से मेरा मतलब हम अभी जिस बॉडी में उसका बात नहीं कर रहा हूँ. आवर मतलब हम फंडामेंटली कौन है, हम जीवात्मा है, हम स्पिरिचुअल है. तो हमारा स्वभाव क्या है, सेम एज गॉड. भगवान का जैसा स्वभाव है, जैसा नेचर है, भगवान सच्चिदानंद, वैसे ही हम लोग भी हैं. क्यों है ऐसे, क्योंकि हम उनके पार्ट्स एंड पार्सल है. इसलिए डिफरेंस ये है, वी ऑल्सो हैव स्वभाव बट इन स्मॉल क्वांटिटी, क्वालिटी इज सेम. सो भगवान में जो भी चीजें हैं वो एग्जैक्टली सेम चीजें हमारे अंदर है. क्वालिटी के मामले में क्वांटिटी बहुत सारी कम है, ठीक है. लेकिन आप बोलोगे यार हमें तो बहुत सारी खराब चीजें भी है, तो ऐसा क्या है, तो क्या भगवान में भी खराब चीजें हैं क्या, मतलब क्या कहते हैं उसे, भगवान में भी खराब चीजें हैं क्या, क्योंकि हम में है, भगवान में तो वो इन्फिनिट अमाउंट में होंगी. बट ऐसा नहीं है. क्या हुआ है ना, हमारी कुछ ओरिजिनल पोजीशन थी जिससे हम जिस पोजीशन पर अभी हम नहीं है, और भगवान उस पोजीशन से कभी नहीं गिरते. लॉर्ड इज अच्युत, ही नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन. क्योंकि हम उस पोजीशन से च्युत हो गए हैं, इसलिए हमें सारी की सारी डिफिकल्टीज आई. सो उस पोजीशन से च्युत होने के बाद हमें मटेरियल नेचर का सामना करना पड़ता है. मटेरियल नेचर क्या है, देखिए दोस्तों, तीन मोड्स होते हैं.
एक सत्वगुण, एक राजगुण और एक तमोगुण। सो डिपेंडिंग ऑन हम कौन से मोड में आते हैं, उसी हिसाब से फिर हम अपना क्वालिटी को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ही सात्विक, मतलब कोई अच्छा इंसान टाइप का है, सुबह सुबह उठ जाएंगे, अमोघ लीला प्रभु इस प्रकार के एग्जाम्पल दे रहे थे। जो सात्विक लोग होते हैं वो सुबह सुबह उठ जाएंगे, जॉगिंग करने के लिए जाएंगे, ज्यादा पाप नहीं करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वेजिटेरियन खाएंगे, हम अच्छे लोग हैं सात्विक लोग। राजसिक लोग क्या करेंगे, सुबह 8 बजे उठेंगे, जिम करेंगे, थोड़ा उनका क्या कहते हैं, किंगली नेचर हो। किंगली नेचर मतलब क्या, डोमिनेट करने का थोड़ा उनका स्वभाव रहेगा कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये अचीव करूंगा, वो अचीव करूंगा। तो ये राजसिक गुण। तामसिक गुण वाले क्या होंगे, उनका सुबह शुरू होगी 12 बजे और उठेंगे देर से, बहुत ही लेजी लेजी टाइप के होंगे, डिप्रेस डिप्रेस टाइप के होंगे। तो बेसिकली ये 3 चीजें हैं। और हम पोजीशन से च्युत होने के बाद जिस नेचर के साथ एसोसिएट करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बन जाता है। We fall down, the Lord does not, he is achyut. Then we associate with 3 modes and act accordingly. So अब हमने स्वभाव को समझ लिया, तो हमारा स्वधर्म क्या है। डिपेंडिंग ऑन हम ये तीनों में से क्या हमारा स्वभाव है, उसी हिसाब से हमारा स्वधर्म तय होता है। तो शास्त्रों में 4 दिए गए, 4 वर्ण दिए गए हैं। ब्राह्मण जो कि मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, सात्विक मोड में होते हैं। नेक्स्ट क्षत्रिय जो कि सात्विक राजसिक मिक्स काइंड ऑफ मोड में होते हैं। नेक्स्ट होते हैं वैश्य जो कि राजसिक तामसिक मिक्स होते हैं। और जो शूद्र होते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो लोअर या हायर हो गए, ऐसा नहीं है। जिसका जो मोड ऑफ मटेरियल नेचर है उसी हिसाब से उसको स्वधर्म है, उसको वैसा वर्ण असाइन किया गया है, वो उसका ड्यूटी वैसा है, उसका स्वधर्म वैसा है। ठीक है। सो एक्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन इक्वल टू स्वभाव प्लस स्वधर्म। ओके, अब ये हम समझ गए। सो मटेरियल में हमारा कुछ स्वधर्म है और कुछ स्वभाव है। तो इवन दो कि 4 वर्ण है, उन 4 वर्णों का एक ही मेन चीज, मेन गोल है। 4 वर्ण इसलिए ये किए गए हैं ताकि हम हमारा जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल नेचर है उसको अच्छी तरह से ये कर सके। तो ये हो गया हमारा मटेरियल स्वधर्म। मटेरियल स्वधर्म इन द सेंस कि मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए हमारा क्या मेन गोल होना चाहिए कि स्पिरिचुअल नेचर जो भी हमारा है उसको वापस रिवाइव करना। और जो मटेरियल स्वभाव होता है वो अक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू मोड्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट होता है हमारा स्पिरिचुअल स्वभाव और स्वधर्म। स्पिरिचुअली हमारा स्वधर्म सिर्फ एक ही है, जो कि भगवान की सर्विस करना। वो किसी भी पोजीशन में हो, मैं बस भगवान की सर्विस करना है स्पिरिचुअली। और स्वभाव क्या है, नेचुरली हमारा डिजायर, आत्मा का डिजायर होता है सर्विस करने का, और आत्मा भी सच्चिदानंद होती है जैसे भगवान होता है सच्चिदानंद। ओके। सो भगवतम में एक श्लोक आता है जैसे कहते हैं, सवै पुंस परोधर्म यतो भक्ति रदोचते अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। अगर हम ये स्पिरिचुअल अपना जो है स्वधर्म से वापस से रिवाइव कर लेंगे तो क्या होगा, तो जो भी ह्यूमन बींग्स है उसका परम धर्म है, मेन गोल है उनकी भक्ति करना। उनकी भक्ति मतलब कृष्ण, कृष्ण की भक्ति करना हमारा परम धर्म है। कैसी भक्ति करना है, अहेतु की, विदाउट एनी मोटिव। नॉट लाइक कि मुझे भगवान को चाहिए और फिर मेरा कुछ मोटिव पूरा हो रहा है, मुझे ये चीज अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, विदाउट एनी मोटिव। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब विदाउट स्टॉपिंग। अभी तो स्टॉप हो जाता है, बट विदाउट एनी स्टॉपिंग। जब हम ये स्टेट को पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, ये आत्मा सुप्रसिद्धि, तब हम बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ओके। सो अभी हम पता चल गया हमारे पास कार्बन दोष क्यों है, क्योंकि हम हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें नहीं है। इवन दो कि जो मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड में जो अपना काम नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने नेचर के हिसाब से काम नहीं करना, जो कि आप एक डिफिकल्ट जॉब में चले गए, तो अगर आपके नेचर के हिसाब से आप काम नहीं करेंगे तो अंदर से आप बहुत ही वीक रहेंगे। तो आपको अगर कोई डिजीज होगा, कोई बाहर से परेशान करेगा, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाएगी, तो आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा जल्दी परप्लेक्सिटी हो जाएगी आपके ना चाहते हुए। तो बस यही है। सो एक चीज है। तो अभी हमारे पास भी कार्पण्य दोष है। कार्पण्य दोष को प्रभुपाद कहते हैं माइजर। कार्पण्य मतलब कृपण जो होता है ना, कृपण ओडिया में हम कहते हैं कृपण। कृपण मतलब माइजर। माइजर वन हु डज नॉट यूटिलाइज प्रॉपर्ली इवन दो ही हैज रिसोर्सेस। मान लेते हैं किसी के पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसे को खर्च नहीं कर रहा है, क्यों, वो सिर्फ बचा रहा है। तो उसके पास जो रिसोर्स है वो है पैसा, और क्योंकि वो इसे सही जगह खर्च नहीं कर रहा है तो उसे हम कहेंगे माइजर। सो ह्यूमन बॉडी इज अल्टीमेट रिसोर्स एंड वी शुड यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली। तो अगर हम इसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर हम भी माइजर कहलाएंगे। तो अर्जुन भी वैसे ही कुछ बोल रहे हैं, आई एम कंफ्यूज्ड ओवर माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज़ ऑफ माइजरली वीकनेस। अच्छा, अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे पास कार्पण्य दोष है? वो तो भगवान के भक्त है और इटरनली है भाई, ऐसा नहीं कि कभी मतलब अर्जुन कोई इंसान है और फिर भगवान के साथ मिलके वो भक्त है, नहीं नहीं नहीं, वो इटरनली भगवान के भक्त है। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनके पास माइजरली वीकनेस है? अर्जुन सोच रहे हैं कि वो एक क्षत्रिय है और
क्षत्रिय क्यों होते हैं? नॉट बाय बर्थ, क्योंकि उनके पास क्षत्रिय नेचर है। स्टिल देन ही डज नॉट फाइट, हेंस ड्यू टू ह्यूमिलिटी, वो ह्यूमिलिटी के हिसाब से, मतलब दीन होते हुए, मतलब क्योंकि वो डिवोटी भगवान के, तो नेचुरल उनके पास सारी की सारी गुड क्वालिटीज होती है, तो ह्यूमिलिटी भी उनमें नेचुरल पाई जाती है। तो ह्यूमिलिटी के हिसाब से वो कह रहे हैं कि मैं अभी कंफ्यूज हूँ और माइजरली वीकनेस की वजह से अपना सारा का सारा आपा खो बैठा हूँ, कंपोजर खो बैठा हूँ, कामनेस खो बैठा हूँ। तो ये है कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव। तो मान लेते अभी हम कंफ्यूज हैं, हम अभी क्या है, परप्लेक्स्ड है और हम प्रॉब्लम है, तो हमें किससे हेल्प मांगनी चाहिए? सो अर्जुन देखते हैं किससे हेल्प मांग रहे हैं। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वं, त्वं मतलब कृष्ण को पूछ रहे, इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू। अर्जुन says to Krishna as he is present in front of Krishna, for us we have to approach a representative of Krishna। अब अर्जुन के लिए तो बहुत ही इजी हो गया क्योंकि कृष्ण उनके पास ही थे, उनके साथ ही थे। हम क्या करें? तो हमें करना चाहिए कि कृष्ण के जो बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है, हमें उनके पास अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि, और कैसे अप्रोच करना चाहिए? अप्रोच करने के बाद हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए? उन्हें बोलना चाहिए जैसे कि अर्जुन बोल रहे हैं, यत् श्रेय निश्चितम गृहीतन में शिष्यस्ते हम साधिमात्वम प्रपन्नम। In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Hence, we should go to Guru and say to tell us what is Shreya. So हमें गुरु के पास जाना चाहिए। किसके पास? गुरु के पास। In this condition, I am asking you. You मतलब कृष्ण अर्जुन के लिए, बट हमारे लिए कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव। कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? गुरु है। And say to tell us what is Shreya. और उन्हें जाके बोलना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए बेस्ट क्या है, श्रेय क्या है। नॉट लाइक हमें जो पसंद है, और वो जो भी बोले उसे एक शिष्य की तरह फॉलो करना चाहिए। आगे हम देखते हैं शिष्य का मतलब क्या होता है, श्रेय का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं, एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेम। तो प्रभुपाद जैसे अपने लेक्चर में एक बोल रहे हैं कि श्रेय का मतलब होता है जो हमारे लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल है, जो हमारे लिए अच्छा है। प्रेय का मतलब क्या है? इमीडिएटली पैलेटेबल, मतलब जो हमें अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जिम करना है, उसके लिए इमीडिएटली पैलेटेबल होगा वो जाके गुपचुप खा ले, तो कुछ टेस्टी खा ले, तो उसके लिए वो इमीडिएटली पैलेटेबल है। लेकिन अल्टीमेट गुड उसके लिए वो होगा, क्योंकि उसका वही गोल है, अल्टीमेट गुड जिम बनना बढ़िया नहीं है, बट उसके केस में उसके लिए अच्छा ये होगा कि वो एक्सरसाइज करे, डाइट मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल, किसी को एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसके लिए इमीडिएटली पैलेटेबल होगा भाई फोन चलाते हैं भाई, वो इमीडिएटली पैलेटेबल होगा। लेकिन अल्टीमेट गुड उसके लिए ये होगा कि वो पढ़ाई करे। सो जो शिष्य होता है वो सस धातु से आता है, व्हिच मीन्स टू रूल। शिष्य इज द वन हु इज रूल्ड बाय द शास्त्र अंडर द गुरु। तो शास्त्र जो होता है वो रूल करने के काम आता है। जो किंग होता है वो शास्त्र से रूल करता है, और जो गुरु होता है वो शास्त्र से रूल करता है। क्योंकि रूल करने के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए, बिना अथॉरिटी के हम रूल नहीं कर सकते। सो हमें एक शिष्य की तरह रूल्ड होना चाहिए गुरु की तरह। तो वो जो भी बता रहे हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। और हमें कैसे पता चलेगा भाई जो व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं वो गुरु है या नहीं? सो गुरु मतलब वो एक ऑथेंटिक गुरु परंपरा में आ रहे होंगे, राइट? जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद हैं, और जो ऑथेंटिक गुरु परंपरा होगी वो हमेशा कृष्णा पे जाके, भगवान विष्णु पे जाके एंड होगी। तो आपका पेशेंट लिसनिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा। बस इतना ही था।